چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جنوبی پنجاب کے دورے پر ملتان پہنچ گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور دیگر رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری ورکرز کنونشن میں شرکت کے علاوہ اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جنوبی پنجاب کے دورے پر ملتان پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور دیگر رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری ورکرز کنونشن میں شرکت کے علاوہ اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری جنوبی پنجاب کے دورے پر ملتان پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اراکین اسمبلی اور پارٹی عہدیداران نے ان کا استقبال کیا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے روئس سے گفتگو میں بلاول بھٹو کے دورہ کی تفصیلات بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپل پارٹی کا لانگ مارچ 27 فروری کو کراچی سے شروع ہوگا، جو پورے ملک سے ہوتا ہوا اسلام آباد جائے گا۔ 10 فروری کو گیلانی ہاؤس میں ورکر کنونشن ہوگا کریں گے۔ 27 فروری کو کراچی سے شروع ہوگا اور ٹوٹل پورے ملک سے ہوتا ہوا اسلام آباد جائے گا، اور ملتان کے لیے آج بلاول بھٹو صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں اور کل بھی یہیں ہوں گے، اور 10 تاریخ کو 11 بجے یہاں گیلانی ہاؤس میں جنوبی پنجاب کا پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا موقف ہمیشہ سے علیحدہ صوبہ رہا ہے۔ وہ جب وزیر اعظم تھے انہوں نے علیحدہ صوبے کا اعلان کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ آصف علی زرداری کی شہباز شریف سے ملاقات مثبت رخ ہے۔ کنسنسس کی پالیٹکس کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ملاقات ہے لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اور حمزہ شہباز شریف لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ ان پنجاب، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی کا مزید کہنا تھا کہ پیپل پارٹی جمہوری جماعت ہے اور صرف پیپل پارٹی ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ کیمرامین ارشد گجرے کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ اور بلاول بھٹو زرداری کی جنوبی پنجاب میں انٹری کا پہلا کھڑاک ملتان سے مسلم لیگ نون کی بڑی وکٹ اڑا دی، جبکہ سابق یو سی چیئرمین رانا سجاد حسین نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ملتان میں بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کی بڑی وکٹ گرا دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا سجاد حسین کل پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ رانا سجاد حسین مسلم لیگ نون کے سابق یو سی چیئرمین بھی تھے۔ رانا سجاد حسین لیگی سابق صوبائی وزیر چودھری عبدالوحید ارائیں کے قریبی دوست ہیں۔ جنوبی پنجاب میں سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ بلاول کے بعد حمزہ شہباز شریف کی بھی ملتان میں انٹری۔ حمزہ شہباز 12 فروری کو جلال پور میں جلسہ کریں گے۔ لیگی رہنماؤں نے جلسے کی اجازت کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو درخواست دے دی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ملتان پہنچ گئے، جبکہ حمزہ شہباز ملتان کے لیے اڑان بھرنے کو تیار ہیں۔ حمزہ شہباز 12 فروری کو ملتان آئیں گے۔ حمزہ شہباز 3 روز ملتان میں قیام کریں گے۔ وہ 12 فروری کو جلال پور میں جلسہ بھی کریں گے۔ ملتان میں تحریک انصاف کی پارٹی خواتین کے اعزاز میں تقریب، جنوبی پنجاب بھر سے خواتین کی شرکت۔ پارٹی خواتین کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کی بھرپور تیاری کے لیے نئی تنظیم سازی جلد مکمل ہونی چاہیے۔ جنید انور کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی خواتین کا اکٹھ ہوا۔ سابق جنرل سیکرٹری قربان فاطمہ کا کہنا تھا کہ تنظیم تحلیل ہونے سے پارٹی خواتین مایوس تھی۔ میٹنگ میں نئی تنظیم سازی پر بات ہوئی۔ اور ہمارا مقصد یہاں تھا صرف گیٹ ٹوگیدر اکٹھا ہونا، کیونکہ جب سے ہماری تنظیمیں تحلیل ہوئی ہیں تو ہم سب خواتین گھروں میں تھوڑی ڈسارٹ میری بہنیں بیٹھی تھیں، تو میں نے سمجھا کیوں نہ ہم سب ایک گیٹ ٹوگیدر کریں، ہم سب اکٹھے ہوں اور آگے آنے والے بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں کریں۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر حمیدہ خانم کا کہنا تھا کہ تمام خواتین نے متحد ہو کر پارٹی کے لیے کام کرنے کا عہد کیا۔ یہ جی انہوں نے موسم بہار بنا دیا ہے، ایک جیسے گلے دودھی کے وہاں ہوا تھا، اسی طرح انہوں نے آج یہ پھول کھلائے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا یہ گیٹ ٹوگیدر رہا ہے، اور بہت خوشی کی بات ہے یہ سب ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ تقریب میں رہنما تحریک انصاف آصفہ سلیم ملک، نادیہ بھٹی، شازیہ عباس خانی، منورہ شیخ، آسیہ ملک، منیبہ شاہد، ادیب آرا، بشرا سعید، رابعہ ملک، فرخندہ گیلانی، میڈم شمائل شاہ، اعجاز فاطمہ، نسرین سلطان، سیدہ بھٹا، تنسیم کوکب، عذرا شیخ، فرحت پروین، زرتاشیہ کرن، ہما لطیف، عشا بخاری، ارم خالد، فرخ ناز، عائشہ، فرح بلوچ، کرن زکیہ، نازیہ بھٹا، رضوانہ تبسم دورانی اور دیگر شریک ہوئیں۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ جنید انور، ملتان۔
बेघर अफराद को अपनी छत मिलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। खानेवाल में अपना घर स्कीम की मुख्तस जगह जोहड़ में तब्दील। गंदे पानी का ताफुन फैलने से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। खानेवाल में मखदूमपुर रोड पर वजीर आजम की अपना घर स्कीम के लिए 80 कनाल रकबा मुख्तस किया गया था। बेघर अफराद को आसान इकसात पर घर बनाकर देने का हुकूमती दावा तो पूरा न हो सका, लेकिन मुख्तस जगह पर गंदे पानी का तालाब बन गया। अहले इलाका का कहना था कि अपना घर का ख्वाब तो दूर, जिंदगी अजीरन हो गई। तकरीबन 8-9 माह गुजर गए हैं, अभी तक यही गंदा पानी खड़ा है। कोई अपना सिस्टम वगैरह नहीं देखने को मिला, ना कोई इधर काम शुरू हुआ। बीमारियां फैल रही हैं, रात को मच्छर की वजह से सो नहीं सकते, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि अपना घर स्कीम के लिए दरख्वास्त दी थी मगर कोई जवाब नहीं आया, जबकि मुख्तस जगह पर गंदे पानी का जोहड़ जिले इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। दरख्वास्त दी थी, इधर गंदा पानी जमा हुआ है, बहुत अरमान लगता है, दुख लगता है जी सर, इधर से गुजर ही नहीं सकते। गंदे पानी के जोहड़ ने जहां इलाका भर में ताफुन फैला रखा है, वहीं शहरी भी हुकूमती दावों से मायूस दिखाई दिए। बेघर अफराद का कहना है कि उनके अपने घर का ख्वाब की उम्मीद तो टूट चुकी, मगर अहले इलाका कहते हैं कि यहाँ से गंदे पानी को ख़त्म करके उनकी मुश्किलात में तो कमी की जा सकती है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अवामी मसाइल की। तो मियांवाली में पंजाब सरकार की महीना सफाई मुहिम नाकाम हो गई है। मेडिसन मार्केट कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी है। तापुन के बायस सांस लेना भी महाल हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मेडिसन मार्केट में कूड़े के ढेर लग गए। ताफुन के बायस दुकानदार और शहरी ज़हनी अजियत का शिकार हैं। दुकानदारों का कहना है कि कारोबार शदीद मुतासिर है। गंदगी की वजह से मच्छरों और मक्खियों की बहुतात रहती है, जिससे वबाई अमराज फैलने का खदशा है। बड़ी मुश्किल होती है। जेले गाह खाते वो पहले आते ने गंद च बवां जे तेरे को चाह पवां जे गंद पहले दिखा। जेले जी बाने मक्खियां विच आ लगदियां, कुल मक्खियां दा गंद थाई है, कुल ढेर थाई पैन जी। मेरा जी कारोबार सारा ठप थी गया इसे गंद की वजह तू। दूसरी जानिब एमसी अफसरान का कहना था कि सेंट्री वर्कर्स की कमी के बायस सफाई सुथराई के मसाइल का सामना है, मगर महदूद वसाइल के बावजूद शहरियों को म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी जारी है, जबकि अगले 1 रोज में मेडिसन मार्केट की सफाई कर दी जाएगी। महकमा हाईवे की गफलत। जामपुर के मौजा हाईरो में स्टील पोल 1 माह से भी कम अरसा में टूट गया। मुसाफिर कश्तियों पर दरियाए सिंध अबूर करने लगे। कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। मुसाफिरों ने पुल फौरी तौर पर फाल करने का मुतालबा कर दिया। मौजा हीरा और जतोई के दरमियान दरियाए सिंध पर बनाया जाने वाला स्टील पुल 1 माह बाद गैर फाल हो गया। 3 अजला राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान के अवाम सस्ते और मुख्तसर सफर से महरूम हो गए हैं। लिया इंतजामिया की नहली शजरकारी मुहिम नाकाम हो गई है। तहसील ऑफिस के सामने लगाए गए 2000 से ज्यादा पौधे देखभाल न होने के बायस सूख गए हैं। अमले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम के विजन के मुताबिक शजरकारी मुहिम के तहत तहसील ऑफिस लिया के सामने 2000 पौधे लगाए गए, जो देखभाल न होने की वजह से सूख गए। सब्जे के बजाय झाड़ियां हो गयी। शहरियों ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। 2000 तो 2500 पौधा लगाया गया है। हुण इन टाइम कोई भी नजर नहीं आता पिया। बहुत दुख थे देख के। मैं गुजारिश करे जनाब इंदे मुतलका महकमा के खिलाफ कार्रवाई की वने। इन शजरकारी को कामयाब करने वास्ते दोबारा जनाब इधर दरख्त लाए वने। ये शजरकारी तो करती है लेकिन इसकी देखभाल नहीं करते। सारे पौधे देख लें सूख गए हैं, ना कोई इसकी देखभाल होती है ना कुछ होता है, इसलिए कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है और ना ही इसका कोई देख लें कोई साने हाल है। सब के सभी पौधे जल गए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी अमला खिलाफ पौधों को पानी न लगाने की वजह से कार्रवाई न हो सकी। लिया में शजरकारी मुहिम इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी और अदम तवज्जो की बहस नाकाम नजर आती है, जिस पर आला हुकाम को नोटिस लेकर इन जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, लिया। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं गैस का बहरान। शहर ओलिया के वासी परेशान। यूसी 17 के मकीन गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। खूनी ब्रिज चौक पर एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। गैस की लोड शेडिंग से परेशान मुल्तान के बासी सड़कों पर निकल आए। यूसी 17 के मकीनों ने गैस की अदम दस्तयाबी के बायस खूनी बुर्ज चौक पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। गैस का तो हमने नाम निशान ही नहीं सुन रहे।
सुबह जो तब ले तो गैस नहीं है, शाम को जो तब नहीं है, हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। समझ में ये हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है। शहरियों का कहना था कि गैस आती नहीं लेकिन भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिल अलग भरते हैं और एलपीजी अलग खरीदते हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। सुबह 5 बजे आता था और 6 बजे चला जाता था, अब वो भी नहीं है। बेचारे जो हैंड टू माउथ हैं उनकी तनख्वाह बिल्कुल है ही नहीं, किराए के घर पे रहते हैं, वो बेचारे इतने तंग हैं, इतने परेशान हैं। आज 7 दिन हो गए हैं, गैस का नाम ही नहीं है इस इलाके में। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि गैस की लोड शेडिंग के बायस घर का पूरा निजाम दरम बरम रह गया है। यूसी 17 में गैस बहाल की जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। रहीमिया खान के यूटिलिटी स्टोर खाली, आटा, चीनी, घी, ऑयल और दालें गायब हो गईं। सस्ती अशियाए खुरनोश खरीदना ख्वाब बन गया। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशियाए खुरनोश खरीदने पर मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शहरियों को सस्ती अशियाए खुरनोश की फराहमी के हुकूमती दावे धरे रह गए। रहीमिया खां इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशंस तक महदूद। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 25 रोज, कुकिंग ऑयल्स 1.5 माह, दालें और चने 1 माह, जबकि आटा 1 हफ्ता और घी 12 रोज से गायब है। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोरों से खाली हाथ लौटना पड़ता है। सारा दिन चक्कर लगा लगा कर लोग चले जाते हैं। यहाँ जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं जैसे घी है, चीनी है, 1.5 माह से तकरीबन नहीं मिल रहा है। बाहर लोग लेने जाते हैं तो वो डबल कीमत पे मिलती हैं, इसलिए आवाम को बहुत जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो तो यहाँ मिलती नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर पर वाफिर और सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीमिया खान। लिया में महकमे सेहत की मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने और मुस्तकिल न करने पर सरापा एहतजाज हैं। LHVs, आया और दीगर मुलाजमीन ने हेल्थ ऑफिस में रैली भी निकाली। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट देखिए। माँ बच्चे की सेहत के प्रोग्राम IRMNCH के मुलाजमीन के मसाइल हल न हो सके। लिया में LHVs, आया और दीगर मुलाजमीन ने 2 माह की तनख्वाहें न मिलने और मुस्तकिल न करने पर रैली निकाली। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा किया। हमारे ये मुतालबात है कि हमें रेगुलर किया जाए और हमें 31 दिसंबर तक हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसके बाद ना तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है। हमें ये कहा जा रहा है कि आपकी सीट पे न्यू ऐड लगेगा और उस पे आप लोगों को NTS देना पड़ेगा। रेगुलर किया जाए हमें, या कोई हमें एक्सटेंड किया जाए, हमें एक्सटेंशन की जाए। हमारी 31 दिसंबर से हमें खत्म हो चुकी है ना, तो इसीलिए हमारा अभी यही मुतालबा है कि हमें जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए और हमारा फौरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाए और हमें तनख्वाह भी दी जाए। पिछले 2 माह से हमें फिर से तनख्वाह नहीं मिली। 6 माह पहले बंद थी, 6 माह की देने के बाद अब फिर बंद हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि वादे के बावजूद मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। वजीर आला पंजाब नोटिस लें। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया। जितना बड़ा घर उतना हैवी मीटर लगेगा। मेपको ने सार्फिन की जेबें हल्की करने का नया फॉर्मूला बना लिया। सादा घरेलू मीटर लगाने की बजाय लोड के हिसाब से मीटर लगाने का फैसला किया गया है। 3 मरले घर के लिए 3.15, जबकि 1 कनाल के मकान में 10.61 किलोवाट का मीटर लगेगा। मैपको ने सार्फिन की जेबों से मजीद पैसे बटोरने का प्लान तैयार कर लिया है। घरेलू मीटर लोड के हिसाब से लगेगा, जबकि 3 मरले घर में 3.15 किलोवाट, 5 मरला घर में 5 किलोवाट, 7 मरला घर में 5.15, 10 मरला मकान पर 6.6 वाट का मीटर लगेगा। कैंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान के वासियों के लिए अच्छी खबर है। तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स जारी। वार्ड नंबर 5 से मुंतखब बिलाल खानी ने अपने हल्के सीवरेज का काम शुरू करा दिया। मोहसिन उल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। कैंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान के मेंबरान की सुनी गई। करोड़ों रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। वार्ड नंबर 5 से मुंतखब बिलाल खानी ने फंड्स की मंजूरी के बाद अपने हल्के में सीवरेज स्कीम पर काम शुरू करवा दिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने हल्के के काम करवा सक रहा हूँ और हमारी इस कनक मंडी ये हमारे हल्के का शहरग है। हमारे हल्के का मेन एरिया है, इसके अंदर 300 वोट्स हैं। इस कनक मंडी में 60 घर हैं और मेरे वालिद साहब जब इलेक्शन लड़े थे 1998 में, उन्होंने भी कनक मंडी से शुरू किया था और मैंने जब अपना इलेक्शन लड़ा है तो मैंने भी अपना सियासी तमाम सरगर्मियाँ कनक मंडी से शुरू की हैं। मुल्तान कैंटोनमेंट के इलाके कनक मंडी में 70 साल बाद सीवरेज का मेगा मंसूबा शुरू किया गया। अहले इलाका खुश हैं। जब इन्हें कॉल करो ये फौरन पहुंचते हैं यहाँ
اور किसी भी इलाके में वो कोई छोटा मोटा काम हो बड़ा हो तो ये फौरन रिस्पॉन्स देते हैं उसका। टफ टाइल लग रही है, प्लेन हो जाएगा, पानी की निकासी हो जाएगी, हर जगह इन्होंने ना पाइप दिए हैं। एक एक काम हो रहा है, जैसे अब ये कनक मंडी का एक तरीना मसला था और इससे बिल्डिंगों के अंदर पानी जा रहा था नाली का। बिलाल खानी साहब ने जो वादा किया था लोगों से, उन वादे पर पूरे उतरे हैं और हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह हर हल्के में काम हो रहे हैं। हमारे खेलने का मसला था, हमारी बॉल्स वगैरह जो थी वो नालियों में जाती थी और जो मसला अब हल हो गया और सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। पहले 5 साल और अब ये जमीन आसमान का फर्क है, जिस तरह सीवरेज डल रही है, सफाइयां हो रही हैं। कैंटोनमेंट के इलाके कनक मंडी में स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब की जाएंगी। इसके बाद मॉडल इलाके का दर्जा देने की राहें हमवार हो जाएंगी। तमाम तर मसाइल हल होंगे, न सिर्फ सीवरेज बल्कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का भी मसला इस वक्त दरीना तौर पर हल किया गया है, जिस पर इलाका मकीन खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। शहर औलिया को क्लीन एंड ग्रीन बनाने का मिशन, नजरअंदाज इलाके भी अब साफ सुथरे नजर आएंगे। मुल्तान इंतजामिया मुतहरिक हो गई। महीना सफाई में तारिकाबाद, नक्शबंद कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में 100 टन की कचरा उठा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान शहर की सफाई सुथराई के लिए खुद मैदान में निकल पड़े। आमिर करीम खान ने तारिकाबाद के अंदरूनी इलाकों में सफाई ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। उन्होंने शहरियों और दुकानदारों में आगाही पंफलेट्स भी तकसीम किए। एक रोज में तारिकाबाद, रशीदाबाद और दीगर इलाकों से 100 टन कूड़ा साफ किया गया। मुल्तान जो सॉलिड वेस्ट कंपनी है, इसके वसाइल तब के हैं जब इसकी जुरिस्डिक्शन को 30+ यूनियन काउंसिल्स की होती थी। अब वो एक्सपैंड होकर 68 हो गई है, बल्कि अब वो बढ़ने जा रही है, कोई 85+ हो जाएगी। आमिर करीम खान का कहना था कि ताजिर बरादरी और शहरी सफाई मुहिम में इंतजामिया का साथ दें। एमडी सफाई कंपनी फारूक डोगर ने भी महीना सफाई के दौरान शहर भर से गंदगी के ढेर साफ करने के अज़्म का इजहार किया। अभी 28 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये कैंपेन चल रही है हुकूमत पंजाब की डायरेक्शन पर। तो जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये निगलेक्टेड एरिया है और यहाँ पर कमो बेश कोई 100 से 150 टन मैट्रिक टन यहाँ पर वेस्ट था और ये वो एरिया है जहाँ पर प्राइमरी कलेक्शन होती थी। यहाँ पर क्योंकि बड़ी नैरो स्ट्रीट है, बड़ी तंग गलियाँ हैं जहाँ पर हमारे कंटेनर नहीं जा सकते। फारूक डोगर का मजीद कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद शहर की सफाई के लिए इकदामात कर रहे हैं। नजरअंदाज हुए वे इलाकों को भी साफ करेंगे। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ तैयब सैफ, मुल्तान।